Good morning, everyone. Today I am at Vitasa Law College, and so, guys, today the person we have with us needs no introduction. He is a teacher, he is an author, he is a PhD scholar, and of course, a YouTuber. So, today, the person I'm talking about, the person who is with me, is none other than Mr. Raqib Ahmed Zia, sir. So before starting our today's session, I would like to thank you for giving me this opportunity, for having me here to have a one-on-one conversation with you. Thank you. Okay, it's my pleasure. Thank you very much. So sir, Raqib Ahmed Zia on YouTube. It's a huge name on YouTube now. It has, we all know your channel now. We all know it so well. Raqib Ahmed Zia has crossed 11k subscribers on YouTube, and that too within a short span of time. Congratulations for this massive. Thanks very much. And also thanks for my subscribers, because without their support it was not possible. So as far as my brief introduction is concerned, my name is Raqib Ahmed Zia. I live at district Badgam, a village which is known as Naru Badgam, and I started my schooling from a government school. That was a primary school. Then I joined the higher secondary, that was also a government higher secondary, and then Emerson College, and after that University of Kashmir. So I started basically my teaching profession in 2003. From 2003 till today, I am teaching different students of universities, colleges, in different colleges as well as in different higher secondaries. And it was in 2012 when I started this YouTube channel. And basically my purpose was to use this technology, because in classroom I teach only 60 to 100 students. Yeah. But through this platform YouTube, I can teach more than thousands of students. So thank you so much, sir. तो मैं आपसे ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो था, ये अपकमिंग क्वेश्चन था मेरा, मैं आपसे आपकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछना चाह रही थी, आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाह रही थी. एंड आई एम सो ग्लैड आपकी जर्नी सुनकर आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच. सो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि we all know that Raqib Ahmed Zia started his YouTube channel, YouTube journey as a teacher only, right? So sir, I just want to know the reason, what is that main element which inspires you to do YouTube right till now? You're still using YouTube. What is the main element? What is the key, sir? Basically, you know that in YouTube, there are people who are basically coming on YouTube for entertainment purpose only. So I want to change this mindset. जितने भी आजकल आप देखते हैं जो भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या यूट्यूब हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये बेसिकली लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. तो मैं चाहता था कि इस माइंडसेट को चेंज हम करें और लोगों को बता दें, खासतौर से स्टूडेंट्स को बता दें या जो पेरेंट्स हैं उनको बता दें कि आप यूट्यूब जैसी जितनी भी एप्लीकेशंस है इनका आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो. तो इसीलिए जब मैंने ये शुरू किया था तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि भाई एजुकेशनल चैनल जो है इसको कौन देखेगा, लोग तो ऑलरेडी बोर हो रहे हैं क्लासरूम्स में, तो अब यूट्यूब पे कौन जाएगा लेक्चर सुनने. तो मैंने उनको कहा कि एंटरटेनमेंट के लिए तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये माइंडसेट चेंज हो जाए. और इंशाल्लाह जब मैंने ये शुरू किया था तो पहले तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई, काफ़ी कम लोग आ रहे थे और देख भी नहीं रहे थे, लेकिन अब इतने कम टाइम के अंदर यानी विदिन 9-10 मंथ्स जो है 11 का भी क्रॉस हुआ है. और मेरे कुछ ऐसी वीडियोस भी है जो सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस की हम बात करें जिनमें 10K का भी है, यानी 10,000 लोगों ने उन वीडियोस को देखा है और हर रोज़ देखते रहते हैं. जब भी मैं सुबह ऑन करता हूं मोबाइल तो मैं देखता हूं कि कम से कम रात में भी लोगों ने देखा होता है. तो दैट मीन्स कि अब बच्चों को पता लगा है कि नहीं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी हम यूट्यूब का फ़ायदा उठा सकते. इसीलिए मैंने जो है अपने आप को यूट्यूब के लिए वाकफ़ कर दिया. एज अ स्टूडेंट अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, टीचर्स हमारे कॉलेज में भी तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जब एज फार एज आर एग्जाम्स आर कंसर्न, जब एग्जाम्स की बात आती है, जो हम वो यूट्यूब से एंड पर पढ़ते हैं ना सर, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है एज अ स्टूडेंट. सो थैंक यू सो मच सर. आपने कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में हमारे टीचर्स अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आप रिपीटेडली वो लेक्चर नहीं सुन पाते. आपने अगर एक बार वो मिस किया तो दोबारा आपको वो लेक्चर नहीं मिलेगा. लेकिन यूट्यूब पे क्या फ़ायदा है कि अगर आपने कोई टॉपिक चूज़ करना है तो आप दिन में कभी भी 2-4 बार इसको सुन सकते हैं. और ख़ास तौर से जैसे आपने कहा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उसके लिए उस टाइम जो है बच्चे इजीली जो है इस क्वेश्चंस को बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि टीचर को हर जगह अवेलेबल नहीं होगा. इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा भी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास वर्क को बंक कर दें, आप क्लासेस में जाना छोड़ दें. आप जाइए, क्योंकि उसका अपना एक फ़ायदा होता है, लेकिन यूट्यूब पर लेक्चर सुनना इसका एक अपना फ़ायदा है. ये इक्वली बेनिफिशियल रहता है. यस, इससे दोनों फ़ायदे मिल जाते हैं.
यूट्यूब चैनल इज़ कंसर्न कि सिर्फ हमें मोटिवेशनल वीडियोस या एजुकेशनल लेक्चर्स के बारे में इतना ही नहीं है आपके यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर आप डिफरेंट जो भी सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स होते हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनका आप क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं, एज एन पैटर्न क्या होगा एग्जाम का सर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, व्हाट इट टेक्स टू? यस, हाँ, यही बात सही है कि जो हम एक तो होता है पढ़ाना, कोई टॉपिक हमने चूज़ किया तो हमने पढ़ाया। दूसरा होता है जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उस टाइम बच्चे जो होते हैं काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं कि हम किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़े लर्न करें, किस टॉपिक को कम लर्न करें या कौन सा टॉपिक छोड़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस जितने भी पेपर्स होते हैं या जो हमारे एक्सपीरियंस है उस बेस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको बता देते हैं या कुछ टेक्निक्स बताते हैं, कुछ टिप्स बताते हैं कि कैसे वो इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई यूजी का एग्ज़ाम हो या पीजी का एग्ज़ाम हो, ओवरऑल एग्जाम्स। जितने भी। दैट्स इनक्रेडिबल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू प्रिपेयर अ पैटर्न। यस, बेसिकली मैं तो पहले से ही कर रहा, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि 2002 से ही मेरा ये काम है। टीचिंग के साथ मैं जो है राइटिंग भी करता हूँ, काफ़ी किताबें मैंने मार्केट में है, लोग पढ़ते हैं, लेकिन अब इस चीज़ के ज़रिए से भी मैं जो है काफ़ी कोशिश करता हूँ हर एक तक पहुँचने की। तो सर जैसा कि आपने बोला कि यू आर एन ऑथर एज वेल, आपने 100 से ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं, तो कैन यू प्लीज़ गिव अस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर बुक्स, लाइक आपकी बुक्स किस बारे में बात करती हैं, रेलेवेंस आपकी बुक्स का क्या है? बेसिकली राइटिंग जो था ये मेरे बचपन से मुझे शौक़ था लिखने का, आर्टिकल्स लिखने का, और उसके बाद मैंने किताबें लिखनी शुरू की। तो जब मैं इस प्रोफेशन में आ गया, जब मैंने खुद जो है पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया, फिर पीएचडी वगैरह किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए मैंने राइटिंग शुरू कर दी, और मैक्सिमम जो मेरी किताबें हैं वो पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग है, लेकिन उसके साथ साथ जो है बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस होते हैं या बाकी जो एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी मैंने काफ़ी बुक्स तैयार की है। जैसे आपने कहा 100 से मोर देन 100, तो ये इसमें कंटिन्यू प्रोसेस है। ये हर साल हर दिन जो है इस काम में हम लगे रहते हैं। जो भी सिलेबस नया आता है तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम बुक्स फ्रेम करते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस होता है एकेडमिक बुक्स के ऊपर ही। तो आपका अपकमिंग प्लान्स भी है कि वी कैन सी योर मोर बुक्स कमिंग, राइट? यस, वो तो कंटिन्यू प्रोसेस है। मैंने जैसे कहा कंटिन्यू प्रोसेस कि हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई नई बुक आ जाती है। जैसा कि आपने कहा कि आपने अपने मास्टर्स आपने पॉल साइंस में कि पॉलिटिकल साइंस में, सो आपका पहले से एक लॉ की तरफ एक रुझान, इंटरेस्ट, रुझान नहीं होता, इंटरेस्ट, मैं पहले से सेंटेंस ओके, इंटरेस्ट, सॉरी। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आपने अपना मास्टर्स जो है आपने वो पॉलिटिकल साइंस में करा है, तो विच मीन्स कि आपको जो इंटरेस्ट है वो पहले से ही थोड़ा थोड़ा लॉ की तरफ रहा है। तो मैं आपकी इस लॉ की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी, मतलब कैसा आपका, आपने पॉल साइंस में मास्टर्स की, फिर कैसे आप लॉ में आए, लाइक नाउ यू आर टीचिंग एज अ लॉ प्रोफेसर इन अ लॉ कॉलेज, सो हाउ इट्स? बेसिकली लॉ में आने का मुझे पहले से ही शौक़ था। तो अब आप कहेंगे कि आप लॉ में क्यों नहीं आए, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स थे, कुछ फैमिली रीज़न्स भी थे। मैं कह सकता हूँ कि मेरी फैमिली जो है उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जब मैंने पॉल साइंस में कंप्लीट किया पीजी अपना और उसके बाद मैं टीचिंग लाइन में आया, तो फिर मुझे हमेशा याद ये रहता था कि कहीं ना कहीं मुझे लॉ की जो है ना इंक्लिनेशन मेरे अंदर थी कि मैं लॉ के फील्ड में आ जाऊँ। और जब मैं यहाँ पे कॉलेज में आया, वितस्ता लॉ कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, तो फिर वहाँ पे मुझे इंटरेक्शन हुई लॉ के स्टूडेंट्स से। और अब इसलिए मैं जो हूँ लॉ का टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन लॉ के स्टूडेंट्स के साथ मेरा जो है इंटरेक्शन होता रहता है। और जैसा जो अब BLLB का कोर्स होता है उसमें तो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो अब मैं भी जो एज अ लॉ टीचर अपने आप को है ना महसूस कंसिडर करता हूँ। आपका वो बचपन का वो ख्वाब वो पूरा हो गया। हाँ, जैसा कि हमारे व्यूअर्स को पता है कि हम आज वितास्ता लॉ कॉलेज में हैं, तो आपसे इस इंटरेक्शन से पहले हमारी बच्चों से, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वितास्ता लॉ कॉलेज के, उनसे भी हमारी इंटरेक्शन हुई थी। हमने उनसे राकिब सर के बारे में पूछा था, आपके रिव्यूज़ लिए थे। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो जो रिव्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे राकिब सर के बारे में, ओवरऑल टीचर्स के बारे में, कॉलेज के बारे में। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके कॉलेज, आपके स्टूडेंट्स के बारे में आपकी क्या अवेयरनेस है? देखिए, स्टूडेंट जो है ना कहते हैं कि एक जो है पेड़ को उसके फल से पहचाना जाता है। तो नाइसली जैसा मेरा जो कंट्रीब्यूशन है या मेरा जो काम है वो तो मेरे स्टूडेंट्स से ही दिखेगा, क्योंकि आज तक आप देखेंगे तो हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, तो वो काफ़ी जगहों पे इस वक्त अच्छी अच्छी पोजीशंस पे है। तो ये क्रेडिट जो है हम ही को जाता है। इसलिए जो ये बच्चे हैं हम इनको सिर्फ स्टूडेंट नहीं समझते हैं, बल्कि मैं इनको अपना पार्टनर समझता हूँ, क्योंकि जो मेरा ये प्रोसेस है एजुकेशन का, इसको आगे ले जाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि विदाउट देयर कोऑपरेशन, विदाउट देयर सपोर्ट, विदाउट देयर इंटरेस्ट जो है ना, मेरा ये मिशन कंप्लीट नहीं होता। और हर दिन मुझे एक नई एनर्जी मिलती है जब बच्चे मेरे पास आते हैं
और कहते हैं कि सर हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो मेरे अंदर एक नई एनर्जी आती है और मैं उनके लिए कोई टाइम निकाल लेता हूँ। तो चाहे वो किताब लिखने का मसला हो, चाहे वो लेक्चर देने का मसला हो, चाहे वो किसी और किस्म की गाइडेंस हो, लेकिन ये एनर्जी मेरे अंदर इन्हीं की वजह से आती है, ये इंस्पायरेशन भी मुझे इनसे आती है। ओके सर, सो मतलब वो कहते हैं ना कि एक टीचर, जब आप बहुत टाइम से 2002 से आपने बोला आप टीचिंग लाइन में है, एक टीचर मतलब एक सक्सेसफुल अपने आप को तभी मानता है जब आप अपने बच्चों को शाइन करते हुए देखते हैं। तो सर आपका क्या ख्याल है, मतलब ऑनगोइंग आउटगोइंग बैचेस रहे होंगे कॉलेज के, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वही काफ़ी बैचेस यहाँ से निकले हैं और दे आर वर्किंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन अवर इंडिया, इवन सम आर आउटसाइड इंडिया आल्सो। तो जब भी मैं सुनता हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, कुछ कोर्ट्स में, मैक्सिमम तो कोर्ट्स में ही काम करते हैं और कुछ और NGOs के साथ जुड़े होते हैं, तो जब भी कभी उनसे मुलाकात होती है तो मुझे लगता है कि मेरा मिशन जो है ना वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि मेरा मकसद यही था कि जो मेरे अंदर नॉलेज है वो मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ, और इससे लोगों को जब फ़ायदा पहुंचता है तो इंसान को लगता है कि मेरा मिशन जो है वो कंप्लीट हुआ। क्योंकि एक टीचर, एज ए टीचर मैं कहूँगा कि एक टीचर का सबसे बड़ा सरमाया जो होता है वो उसके स्टूडेंट होते हैं। तो इसलिए जब भी हम देखते हैं अपने बच्चों को शाइन करते हुए, जितने भी हमारे आउटगोइंग बैचेस हैं पिछले 10-15 साल से, तो हमें बड़ी दिली मसरत होती है और ये चीज़ मुझे फिर एनकरेज करती है और जो नए आ रहे हैं बच्चे उनको मैं गाइड करूँ। थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये कॉन्वर्जेशन हमें मतलब हमने अपॉर्चुनिटी दी आपने हमें। लेकिन सर टाइम की कमी होने की वजह से मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहूँगी। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, आपका जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उससे ऑलरेडी 11 के सब्सक्राइबर्स तो क्रॉस कर लिए हैं, लेकिन व्हाट आर योर प्लान्स नाउ, लाइक एज अ व्यूअर ऑफ योर चैनल, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम राकिब अहमद ज़ियान? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि अभी तो सिर्फ ये तो शुरुआत है, कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान, और अभी तो हमें काफ़ी सफ़र जो है, काफ़ी चीज़ें जो है करनी है। अभी तो मैं इंडिविजुअली इस पे काम कर रहा हूं और बहुत कम टाइम होता है, लेकिन उस टाइम को भी यूटिलाइज़ करके जो है इस पे लेक्चर डालता रहता हूँ। लेकिन आगे मेरा ये प्लानिंग है कि मैं हर एक क्लास के लिए, जैसे जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं या जो UG या PG क्लासेस, इनके लिए एक सीरीज़ हम बनाएं जिसमें एक प्ले लिस्ट होगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग लेक्चर अवेलेबल होगा, और जो भी सिलेबस आएगा उसके लिए बच्चा जाएगा यूट्यूब पे और अपने इंटरेस्ट का टॉपिक वहाँ पे देख सकेगा। तो इसमें इंशाल्लाह हमारा 2023 आने वाला है, तो हम चाहते हैं इस पर और नई चीज़ें ऐड कर दें। तो वो तो हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं इस पर, लेकिन उसमें हमें और टीचर्स को भी साथ लाना होगा जो डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट स्ट्रीम्स से आएंगे, तो उनकी भी हमें हेल्प चाहिए, क्योंकि अकेले इस चैनल को चलाना तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, कोई लेक्चर में डालता हूँ तो नीचे 100-200 कमेंट्स आती है, सर हमें उस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए। तो एक इंसान के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो दिन में 4-4, 5-5 लेक्चर बना पाए। तो इसलिए हमें एक टीम की ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं एक टीम हम तैयार करें जिसमें हम एक साथ मिलकर जो है काम कर सके। I wish you all luck for this, for you. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब आपने आपकी जितनी भी बातें हमें आपकी YouTube जर्नी के बारे में, आपकी स्कूलिंग, आपकी राइटिंग के बारे में जितना भी पता चला, बहुत अच्छा लगा। और एज अ व्यूअर ऑफ योर YouTube चैनल, आपकी इस कॉन्वर्जेशन का मेरी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आगे। मैं आपसे सवाल तो आपके लिए बहुत है दिमाग में, लेकिन टाइम की कमी की वजह से सर मुझे इस सेशन को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। लेकिन सर बिफोर एंडिंग दिस सेशन, is there any message for your viewers, for your family, for your social media family basically? Is there any message from Rakib Ahmed Zian? बेसिकली कि दैट जो मेरी मैसेज है इस वक्त, जो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, इस पे डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, मैक्सिमम आर फ्राम कश्मीर एंड मेनी आर फ्राम आउटसाइड कश्मीर। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो यूट्यूब है या ये जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के ऊपर, इनका आप पॉजिटिव यूज़ करें, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इस पे होती है जो हमारे बच्चों को इम्पैक्ट करती है, जिससे उनकी लाइफ, उनको मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो आप इसका पॉजिटिव यूज़ करें और उन चैनल्स को प्रमोट करें, उन चैनल्स को देखें और उन चीज़ों को यहाँ बच्चों को दिखाएं जिससे उनकी लाइफ में जो है फ़ायदा आने वाला है। ख़ास तौर से जो एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस होते हैं वो खुद भी देखें और इनको भी दिखाएं। ये हमारी सबसे बड़ी मैसेज है आजकल के दौर। On this note, we have to wrap up this session. But before doing that, thank you so much, sir, for having me here today. Thank you so much. Thank you very much. So guys, inshallah, we'll get back to you with such more sessions. Till then, take care. Allah Hafiz.